Today we'll discuss the important extract based question from the lesson Reach for the Top Part 2, Maria Sharapova. So please copy the first extract that I'm giving you, important extract for comprehension. That toughness runs through Maria even today. It was the key to her bagging the women's singles crown at Wimbledon in 2004 and to her meteoric rise to the world #1 spot the following year. While her journey from the frozen plains of Siberia to the summit of women's tennis had touched the hearts of tennis fans, for the youngsters herself there appears to be no room for sentiment. The straight looks and the answers she gives when asked about her ambition make it amply clear that she considers the sacrifices were worth it. I am very competitive. I work hard at what I do. It's my job. This is her mantra of success. First question. What is Maria's mantra of success? Answer. Maria's mantra of success is to work hard at what she does. मारिया का जो मंत्र है सक्सेस का, राज है, वो है कड़ी मेहनत. जो भी वो करती है ये उसके नेचर में है. यही मंत्र है उसके सक्सेस का. वो मन से प्रैक्टिस की, वो अपना ट्रेनिंग की, वो और उसे सफलता मिली. सेकंड क्वेश्चन. व्हाट स्पेशल अचीवमेंट इन स्पोर्ट्स वाज मेड बाय मारिया इन 2004? क्या स्पेशल अचीवमेंट था स्पोर्ट्स के फील्ड में जो मारिया कंप्लीट की, अचीव की इन 2004 में? वो सिंगल क्राउन जो है 2004 का जीती वो. राइट द आंसर. It was her getting the women's singles crown in 2004. Question number 3. What does Maria say about the sacrifices made by her? Maria क्या कहती है? Maria का क्या कहना है about the sacrifices? अपना जो बलिदान की, खुशियों की कुर्बानी दी जो आज तक वो की ट्रेनिंग के दौरान, उसके बारे में उसका क्या कहना है? उसका कहना है कि सारा वर्थ था. वर्थ मीन्स वाजिब था, सार्थक था मेरा बलिदान. राइट द आंसर. मारिया सेज दैट द सैक्रिफाइसेस वेयर वर्थ. मारिया कहती है कि सैक्रिफाइसेस जो है, मेरा जो बलिदान था, पिता माँ से अलग रहना, अपने सीनियर्स का इंसल्ट सहना, ये सब वर्थ था, वाजिब था, योग्य था वह बलिदान. Sacrifices were worth for what she has achieved. जो वो आज अचीव की है उस हिसाब से उसका जो बलिदान था वो वाजिब था, योग्य था वो बलिदान कुर्बानी करना. आज उसे कोई इस बात की मलाल नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन. What was Maria's meteoric rise? मारिया का मेटियोरिक राइज क्या था? मेटियोरिक मीन्स तुरंत, रैपिड. उसका रैपिड राइज क्या था? उसका तुरंत, इमीडिएट, उसका उछाल क्या था? उसका अचीवमेंट क्या था? शिखर पे पहुंचना क्या था? राइट द आंसर. Her meteoric rise was when she reached at the top of the women's tennis. उसका meteoric rise यह था, rapid rise यह था, rapid शिखर पे पहुंचना यह था. When she reached at the top, जब वह टॉप पे पहुंच गई, शिखर पे पहुंच गई. When she reached at the top of the women's tennis, महिला टेनिस में सर्वप्रथम आई. She reached at the top of the women's tennis. Women's tennis में वो अव्वल हो गई पूरी दुनिया में, फर्स्ट पोजीशन रैंक हासिल की वो. ये उसका मेटियोरिक राइज था, रैपिड सफलता थी मात्र 18 इयर्स में. यस और नो? लास्ट क्वेश्चन, वर्ड पावर क्वेश्चन. फाइंड अ वर्ड इन द पैसेज दैट मीन्स रैपिड और वेरी फास्ट. सो आंसर इज वेरी क्लियर, eminent, that is meteoric.
Rapid or very fast equal to meteoric. Second passage, please copy. That trip to Florida with her father Yuri launched her on the path to success and stardom. But it also required a heart-wrenching 2-year separation from her mother Yelena. The latter was compelled to stay back in Siberia because of visa restrictions. The 9-year-old girl had already learnt an important lesson in life, that tennis excellence would only come at a price. I used to be so lonely, Maria Sharapova recalls. I missed my mother terribly. My father was working as much as he could to keep my tennis training going, so he couldn't see me either. First question, what did Maria's trip to Florida with her father signify? मारिया का जो ट्रिप था फ्लोरिडा अमेरिका के लिए पिता के साथ, इसका क्या महत्व था, क्या प्रयोजन था, क्यों गया था साथ में वो? सक्सेस के लिए, स्टारडम के लिए। लिखिए आंसर। Maria's trip to Florida with her father started for her the path to success and stardom. मारिया का ट्रिप जो फ्लोरिडा के लिए था अपने पिता के साथ, वो मानो शुरुआत था, शुरू कर दिया था। For her the path to success, सफलता के पथ पर पहला कदम बढ़ने जैसा था। For her the path to success and stardom, सफलता के लिए मानो उसको लॉन्च कर दिया गया था, सफलता के लिए वो बढ़ गई थी अपने पिता के साथ। किस पथ पर? सक्सेस एंड स्टारडम। स्टारडम मीन्स प्रसिद्धि। सफलता और प्रसिद्धि के रास्ते पर अपने कदम को बढ़ा चुकी थी वो। ये महत्व था उसका ट्रिप टू फ्लोरिडा का। एनी प्रॉब्लम? टू फ्लोरिडा में जाके क्या की? वो ट्रेनिंग की। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट डिड मारिया फाइंड हार्ट रेंचिंग? मारिया क्या पाई जो हार्ट रेंचिंग था उसके लिए, हार्ट को दुखाने वाला था, दिल को दुखी करने वाला था, हृदय विदारक था उसके लिए? क्या पाई मारिया दिल दुखाने वाला इस दौरान? आंसर, सेपरेशन फ्रॉम हर मदर फॉर मारिया वॉज वेरी पेनफुल। हार्ट रेंचिंग मीन्स पेनफुल बिकॉज शी फेल्ट लोनली। ये हार्ट रेंचिंग था, माँ से अलग रहना। बिकॉज शी फेल्ट लोनली, क्योंकि वो अकेला महसूस करती थी अपनी माँ के सामिप्य के बिना, सानिध्य के बिना। एंड थर्ड क्वेश्चन, व्हाई डिड मारिया फील सो लोनली? मारिया बिल्कुल तन्हा अकेला महसूस क्यों करती थी? आंसर, मारिया फेल्ट लोनली बिकॉज शी मिस्ड हर मदर इन अमेरिका। मारिया इसलिए लोनली फील करती थी क्योंकि वह अपनी माँ को बुरी तरह से मिस करती थी अमेरिका में, क्योंकि माँ को वीजा रेस्ट्रिक्शन के कारण अमेरिका में प्रवेश नहीं मिला था, वो अमेरिका साथ नहीं जा सकी थी। नंबर 4, व्हाई हैड मारियाज फादर टू वर्क मोर? मारिया के पिता को कड़ी मेहनत, ज्यादा काम क्यों करना पड़ता था? क्योंकि अगर वो कड़ी मेहनत नहीं करता, ज्यादा काम, ओवर टाइम नहीं करता, तो पैसे मारिया के ट्रेनिंग के लिए नहीं जुटा पाता। वो ट्रेनिंग जो होता है टेनिस का थोड़ा महंगा होता है। राइट द आंसर। मारिया's father had to do extra work so that मारिया के पिता को एक्स्ट्रा काम करना पड़ता था, ओवर टाइम करना पड़ता था, सो दैट मारिया's ट्रेनिंग इज कंटिन्यूड, जिससे कि मारिया का ट्रेनिंग, टेनिस का ट्रेनिंग चलता रहे, कोई व्यवधान ना हो फी में, कोई सामग्री के आपूर्ति में ट्रेनिंग के दौरान। एनी प्रॉब्लम? लास्ट क्वेश्चन, find a word in the passage the opposite of which is meeting। एक वर्ड फाइंड कीजिए पैसेज से। क्वेश्चन कहता है कि जो अपोजिट हो, एंटेनम हो मीटिंग शब्द का। मीटिंग शब्द का अपोजिट है सेपरेशन।